अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। मोहल्ला सदर में मैं इस टाइम मौजूद हूं। थाना इनको लगता है ठेकरी वाला। एक नौजवान जो मना करता था गलत कामों से, उस शख्स को सरेआम चौक पर फायर मारकर कत्ल कर दिया गया और उसको ये कहा जाता था कि तुमने इस गली से नहीं गुजरना, अगर तुम इस गली से गुजरोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। वो शख्स रोजाना रूटीन के मुताबिक अपनी गली से गुजरता था। एक दिन उस शख्स को फायर मारे और कत्ल कर दिया। उस शख्स के घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। राशिद की वालिदा ज़ारो कतार रो रही हैं। बेबसी का ये आलम है कि इनका ये कहना है कि रो रो कर मेरी थोड़ी सी बिनाई थी वो भी अब चली गई है। जाहिर है जिसका जवान गया हो, जिसके जिगर का टुकड़ा कत्ल कर दिया जाए बेदर्दी के साथ, ये वही माँ जानती है कि उस पर क्या बीतती है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की होया सी? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੇਜਦੀ। माँ जी फिर कितनी देर बाद पता लग गया है कि बाहर इंज हो गया? बहुत 11 खरी 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਗਰ। फिर ਨਿਗਾਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ। अच्छा ਹਾਂ ਦੋਏ ਸੀਗੇ। अच्छा फिर माँ जी? ਬਸ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ। माँ जी राशिद फरमा बरदार अच्छा बच्चा सी? ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਛੱਡਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਪੁੱਤ। ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। राशिद के वालिद साहब भी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये पकड़िएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा बेटा जी इस मतलब हलाक होया भी दाता दी नगरी रेट पुलिस ने मारिया वा ते उतो मुजरम पकड़िया वा 4 साल। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਤਲਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੱਪੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ। अच्छा ठीक है ਤੇ ਜਿਨਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। मुल्जिम पार्टी ये समझती थी कि राशिद ने रेड कराया है। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਸੁਆਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। अच्छा ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਨਿੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਉਹਨੇ ਹਜੇ। हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਸਲਨ ਇਹ 2 ਜਣੇ ਸੇ ਪੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ठीक है, लड़ाई होती रही। ਜਦੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। अच्छा अच्छा जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫੜਾਏ ਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮ ਗਨ ਤੇ ਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਨ ਫੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਆਲ ਗਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਫੜ ਗਨ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। अच्छा ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੜ ਜਾ ਨਾ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਘਰ। ਰਾਸ਼ੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਵਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੈਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫੈਰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ। अच्छा
ਉੱਥੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਠੀਕ है ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਨਤਾਜੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ये क्या मसला था जो बार बार ये कहा जाता था कि तुम यहाँ से नहीं गुजरोगे? ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ तलब दा हाँ जी। उन्होंने मुझे कहा था अच्छा। मैं बच्ची को चूड़ा देने के लिए गया तो मुझे कहने लगा रोक गाड़ी रोक ले कहने लगा अपने बेटे को जे कहने इधर से ना गुजरे। अच्छा। मैं आख्या भी क्यों ना गुजरे कहना इसलिए साड़ी वो मुखबरी करदा अच्छा। साडे बाजार च ना गुजरे। अच्छा। मैं 3-4 दिन ना मतलब गुजार करता रहा। मैं मैं बेटे का कहूंगा मैं गर्मी सर्दी करेंगे। ठीक है। कुछ दिन गुजरे तो मैं ये रोज फायरिंग करते थे रोज फायरिंग करते थे मतलब इस चीज का विवाह होगा। अच्छा। महीने 3-4 महीने से निकाल रहा था। अच्छा। ते मैं ना अपने बेटे को पूछा मैं बेटा बात सुन यार ऐसे लगता जैसे ना तुम्हें धमकी लगा रहा है ते कहना अब मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ते ना मैं मतलब ऐसा मैं तेन पता है मैं वो इंसान नहीं जरा मैं अपने माँ बाप का सिर नीवा कर। हाँ जी। ते ना तू पूरी जिंदगी दे विच अजे तक किसी नाल लड़े ना तेरा पुत लड़न वाले तेरे जी। ते मैं कहा पुत फिर भी देख लो कहंदे अबू ऐसी गल कोई नहीं है ते मैनूं कहंदा पुत तैनूं गल की है तो सही गल दसदा कि मैं कहा यार मैनूं ना रोक के गल कही है तू बाजार दे विचों तेरा मुंडा ना गुजरे कहंदा अबू मतलब उन्हें क्यों ये गल कही ते कहन लगा कहंदा मतलब मैं उन्हें पूछ लेना जा मैं उसको दाढ़ी हाथ लगाया मैं बेटा गल सुन मैं पूरी जिंदगी में लड़या नहीं मैं ते तू भी ये काम नहीं कर। ठीक है। कहंदा अबू जी मैं वो काम नहीं करूं जेदे विच तेरा सिर नीवा हो। मां जी ठहरो। उस तो बाद मैं ड्यूटी ते चला गया। उस तो बाद जदों मसला मैं ड्यूटी ते चला गया मैं काल गई है ते भी इधर दा करके भी राशिद दे फैर बज गया। जाहिर है फिर आप भागे आए हैं। उधर से भागा जब मैं आया ना बाजार में कोई आदमी नहीं था कोई बच्चा तक नहीं था। अच्छा। मेरे बच्चे का खून चल रहा था दिमाग से मैं उसको लेकर इसे मैं रोता रहा। जाहिर है बाप है जाहिर है। चलो मेरे बच्चे का कुछ दुश्मनी जल्दी कुछ कोई दुश्मनी होती ना हाँ। तभी तो दुश्मनी भी कोई नहीं थी हमारी। हाँ। ठीक है जायज और मुकर्रम के नाते में उस मेरे बच्चे को कत्ल किया उन्होंने। फिर शरेआम माल बेचते हैं जय नहीं भी मतलब लोग छिप के शरेआम बेचते हैं। आपका मुतालबा क्या है बाबा जी? मुतालबा साडा जय हमें हक मिलना चाहिए। देखो पुलिस वाले जितने भी हैं ना SHO SP DFC FCC हम ये नहीं कहेंगे हमारे साथ पूरा तावन किया उन्होंने। ऐसा तावन किया हक सच का उन्होंने हमारे साथ दे। क्यों जब मेरा बेटा पढ़ा था ना मैं उसको ये कहा था मैं हम कोई कदम नहीं उठाएंगे हम हक सच के साथ उसने हमारा साथ देना। सही है। इन्होंने क्या हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है। पुलिस ने हमारा पूरा साथ दिया है। ठीक है। हक सच के हमारी फैल में एक झूठ भी होगा तो रब का होगा। अब आपको कोई धमकियां वगैरह तो नहीं देते? देते हैं। क्या कहते हैं? जब कचहरी में गए ना उधर हमें गाली भी निकाली उधर इन्हें धमकी भी लगाई हम एक बरस्ट की मारे अब फैल देखने दरखास्त लिखाकर हमने उधर से खाने में दी। अच्छा। ठीक है। कत्ल के बाद हैं? कत्ल के बाद नहीं ये बाद में। ठीक है। अब जब बुरी जुबान कराई हुई थी ठीक है। कचहरी में अदालत के आगे खड़ के हमें गाली निकाली उसने। मैं जिस बेटे को ये कहा मैं चल नहीं मुझे पता चल गया था उसके पास पिस्टल है। ठीक है। मैं एक आगे गवा चुका हूँ मैं इसको गवा जाहिर है बाप है बाप ने तो ठीक ये बेटा मेरा कहना अबू देख कैसे तुम्हें गाली निकाल रहा है। मैं यार मुझे निकाल रहा ना तो मेरे खुदा का नाम मान मैं तू चले चल मैं इसको धक्के लगा कर मैं बाहर ले आया। ठीक है। ठीक है। अब भी वो हमें धमकियां लगा रहा है ये जहाँ ही फिर आया वो। अच्छा। ठीक है। धमकियां लगा रहा है एक बरस्ट की मार है हम तीनों खत्म करेंगे दोनों बेटे और तुम्हारा तुम्हें। ठीक है। हमें हमारी जान को पूरा खतरा है बराए मेहरबानी कीजिए हमारी मदद कीजिए। ठीक है बिल्कुल ठीक है। इनकी ये अपील है कि हमारी जान को खतरा है और हमें पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें ये कहा जा रहा है कि तुम सब एक ब्रेस्ट की मार हो आगे एक तुम्हारा मार दिया है मजीद भी मार देंगे। किस चीज की लड़ाई चल रही थी? मेरी चाची का इसके साथ अच्छे वेव नहीं था। चाची को मना क्यों नहीं किया? भाव तेरी बारी कीता ही नहीं मना करती सी गंदी औरत सी की कर सकते। हाँ तो उसको निकालना था ना घर से। उन्हें भी मारना सी किसी बस तीसरे नहीं लगाई। क्या मतलब? उन्हें भी मैं कहीं फायर ही मारना सी बच गई हो। तुम्हारी टोन बड़ी खराब है कि मुझे टाइम नहीं मिला मैं चाची को फायर मार देता पुलिस को ये कर दिया पुलिस साथ मिली पुलिस मार रही। तुम्हारी टोन बड़ी खराब है।
को बदमाशों से ताल्लुकात हैं तुम्हारे? को बहुत लंबे लंबे हाथ हैं तुम्हारे? कौन सी? हाँ, क्या कहा है? नहीं नहीं, मसला क्या कहा है? राशिद के भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, एनी शाहिद भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी आसिफ। आसिफ। आसिफ, आप साथ गए थे राशिद के, जी। क्या देखा, क्या हुआ? हाँ जी, अभी मैं ना इधर ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਭਾਈ। हाँ। ਮੈਂ ਬੁਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਮੇਰੀ, अच्छा। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੇਗਮ ਤਲਤ ਦੀ ਮਾਂ, अच्छा ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਤਾਲਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਓਏ ਰਾਸ਼ਦ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਕਬਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੋਇਆ। ठीक है। ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਕਬਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਕਬਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ठीक है। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਜੇ ਕਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਤੇ ਤਲਤ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲਬ ਆਪਣੇ ਤਲਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਛੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਨਾ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ तलत की माँ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਲਬ ਨੂੰ। ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਲਦ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੱਲਿਆ ਬੇਟਾ ਗਨ ਫੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੱਬਖਾਨਾ ਮਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਲਏ ਆ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। यानी काफी भाग के आगे आ ਹਾਂਜੀ गए। ਹਾਂਜੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਨ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਡੱਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, लगाया हुआ था साथ। ठीक है। ਸਟੀਲ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਮਕੀ ਲਾਇਆ ਪਿਸਤੌਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤਾਲਬ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਗੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਗੋਲੀ। और मौके पे फौत हो ਮੌਕੇ गया। ਹਾਂਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ये फायर मार के भाग गए कि वहाँ खड़े रहे? ਇਹ ਭਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ 2-3 ਮੈਲਜ਼ੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, फायर मारने के बाद। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और क्या ललकारते रहे हैं, क्या बोलते रहे हैं? ਲਲਕਾਰ ਤੇ ਜੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਫੈਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। जाहिर है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕੰਧ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। किस चीज की लड़ाई चल रही थी? मेरी चाची का इसके साथ अच्छे वेब नहीं था। चाची को मना क्यों नहीं किया? ਬੇਭਾਵ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। हाँ, तो उसको निकालना था ना घर से। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, किसी ਬਸ ਟਾਈਮ तीसरे- ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। क्या मतलब? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਬਚ ਗਈ ਉਹ। हाँ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਦੇ, हाँ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। अच्छा, ਬਸ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਸ। तुम्हारी टोन बड़ी खराब है कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं चाची को फायर मार देता, पुलिस को ये कर दिया, पुलिस साथ मिली, पुलिस मार रही। तुम्हारी टोन बड़ी खराब है। को बदमाशों से ताल्लुकात हैं तुम्हारे? को बहुत लंबे लंबे हाथ हैं तुम्हारे? कौन सी? हाँ, क्या कहा है? नहीं मारे नहीं नहीं, मसला क्या कहा है? मैंने कहा मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। इस केस की डिटेल्स क्या हैं और इस शख्स ने क्या किया है गुस्से में आकर, ये हम इससे जानते हैं। पूरा नाम क्या है? तल्लत हुसैन है। तलत हुसैन। तलत उम्र कितनी है? 26 साल ही। शादीशुदा हो? नहीं, क्या करते हो? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। हथकड़ी लगी हुई है, थाने में खड़े हुए हो। जी। क्या हुआ है? मुझसे मर्डर हुआ है। कैसे? इससे मर्डर होता नहीं है, मर्डर किया जाता है। आराम से खड़े होना है, झूले नहीं लेने।
मर्डर होता नहीं है, मर्डर किया जाता है प्री प्लान्ड सोच के मेजॉरिटी केसेस में। मैंने आपसे भी सफाई नहीं मांगी, मैंने आपसे कोई कहानी नहीं सुननी, मैंने कोई फनकारी नहीं सुननी। जो एक्चुअल वकूआ है मुझे वो वकूआ आपने सुनाना है, जो हुआ है सुनाओ। हुआ ये है 2017 से मेरी इसके साथ मसला था। 17 से जी। किसके साथ? ये राशिद गुजर था इसका नाम। अच्छा, लड़ाई चल रही थी इसके साथ। इसके बाबा को भी तकरीबन 2-3 मरतबा बताया मेरे बाबा ने, इसके बाबा को भी बहुत मरतबा। किस चीज की लड़ाई चल रही थी? ये हमारे घर में आता जाता था। क्यों? मेरी चाची का इसके साथ अच्छे वेब नहीं था। अच्छा, हाँ जी। तो आपने चाची को मना करना था ना? चाची को बेबा मना किया, बहरहाल चाचू की वो बात नहीं था मानते ना। कौन नहीं बात मानता? चाची नहीं था मानती बात। अच्छा ठीक है, मसला अपने घर में है ना? जी, घर में आता है। कत्ल किसी को कर दिया, मसला अपने घर में है। जी। अच्छा, आगे? हुआ इस तरह हुआ, मैं तकरीबन 11 उस दिन को आया हूँ रात को। जाबी जी गल कर ली। हाँ करो, खुल के करो। रात को मैं आया मैं 11 बजे तकरीबन। सुबह 11:30 बजे दिन मेरी लड़ाई हुई है। पहले सुलह सफाई हो गई, बंदियां ने करवाती। मुड़ के बंदियां ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। क्या कहा? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को कितनी बारी दसिया? कोई पर्चा वर्चा कराया था? नहीं। तो फिर कैसे बताया था पुलिस को? फोन करके? फोन करके बताया। बस फोन करके बता दिया, जिम्मेदारी पूरी? जी। आप यहाँ कैसे पहुंचे? फोन पे पहुंचे या FIR पे पहुंचे? मैं तो FIR हुई। FIR है ना? तो फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम था तो आपने भी दरखास्त या पर्चा कोई कराना था थाने आके। ये कैसी इत्तला थी जो आपने पुलिस को दी है और फिर काम नहीं पुलिस ने किया? मैं इत्थे रहना ही नहीं सी। तो फिर आपको कैसे पता है कि पुलिस को बहुत दफा बताया है? मैं आप खुद बताया भाई। कैसे बताया? 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ। किसने? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜਰ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कोई मेडिकल कराया? ਜੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। अच्छा, ਫਿਰ ਹੀ अब हुआ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, मैं आप पेश होया भाई। अच्छा, जी यही। कत्ल क्यों किया है? कत्ल मैंने नहीं किया, मेरा फायर ही नहीं लगा उसे। किसका लगा है? उसके भाइयों का ही लगा है फायर। उसके भाई तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। मौजूद थे उसके भाई 4 साथ। उसने क्यों फायर मारा आपको? उसने मेरे वाल फायर कीते सी ना लगा जी। नहीं आपको मेरे कहीं? नहीं लगा जी कोई फायर भी। अच्छा। मैं तो अपने दफा च फायर कीता सी, मेरे को कलेशन सी। मौके से जो चीजें पुलिस ने देखी, जो वकूआ देखा, उसमें पिस्टल तुम्हारे पास से मिली है, किसी और के पिस्टल तो पास है से ही नहीं सी, पिस्तौल दी तो गल ही नहीं हैगी। हाँ। पिस्तौल तो नहीं सी हैगा जी मेरे को। गन सीगी जी, वो भी मेरे चाचे ने लिया के मैंने दित्ती है जी। क्यों? ਚਾਚੇ ਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਦੇ। हाँ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। अच्छा, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ। ਕਲੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਭੇਜਾ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ। हाँ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵੱਜਾ ਵਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, अच्छा, ਮੇਰਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ। अच्छा। हमेशा की तरह मैं कत्ल अपना करने दफा- के बाद ये कहना कि मुझे तो पता ही नहीं है, हमेशा की मेरा तरह तो फायर ही नहीं लगा, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ मैं ਨਹੀਂ। तो जानता ही नहीं। ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਲੱਗਦਾ तो उसने जब फायर मारा है तो तुम्हारे आमने सामने कहीं मैं नहीं लगा परे हो फायर? गया जी। अच्छा, तुम बहुत टेक्निकल आदमी हो, उसने फायर मारा, तुम साइड पे हो गए, तुमने मारा तो उसको लग गया। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ हैं? ਫਾਇਰ ਨੂੰ। चाची को मना क्यों नहीं किया? ਬੇਬਾ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। हाँ, तो उसको निकालना था ना घर से। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, किसी ਬਸ चीज़ ਟਾਈਮ से- ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। क्या मतलब? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਇਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਬਚ ਗਈ ਉਹ। 4 सालों से नाजायज ताल्लुकात हैं उसके 6 तुम्हारे? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। अच्छा, तो 4 रात सालों में- में 6 सालों में तुम्हें ये पता था रात कि मेरी में- चाची किसी और के साथ फंसी हुई है? मैं ये रात पता में था आया तुम्हें? भाई। ये पता था? हाँ जी पता, चाची के सारे कितने बच्चे? महल्ले ਨੂੰ पता भाई। कितने बच्चे हैं चाची के? 3 बच्चे है जी। 3 बच्चों की माँ तुम्हारी चाची वो भी कहीं चाची- और लगी हुई है। हाँ जी। वहाँ पे गैरत क्यों नहीं जाती? ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਚੱਕ ਚੱਕ रहंदा नहीं सी ਦਿਖਾਉਂਦਾ ते कत्ल करन नु रहंदा सी तू? ਬਸ पहले ਮੈਂ तू रहंदा नहीं ਆਇਆ सी। ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ। कौन मर गया? ਰਾਸ਼ਦ ਗੁਜਰ ਹੀ कैसे मर गया? ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। किसने मारा? मैं नहीं मारे जी। तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि तुमने नहीं मारा? मैंने तो अपने दफा में किया था ना फैर। दिफा में फायर क्या होता है? तुम कोई इधर पुलिस ऑफिसर हो कि तुम्हें लोग गोलियां मारते जे हैं? मैं ना दफा च करदा ही मेरे मार के मार देंदे फिर। पुलिस ने इस बात से पर्दा उठा दिया है कि तुमने दिफा में किया या क्या किया, अब तुम फनकारी लगा रहे हो। नहीं नहीं फनकारी कोई नहीं, मैं तो अपने दफा च कीता ही फैर। उस शख्स को, मकतूल को गली से गुजरने पे मना कौन करता था? कोई भी नहीं, हैं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। फिर ਇਹ ਝੂਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ तुमसे है? कोई दुश्मनी है?
ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੀ। फिर तुम्हारे साथ क्यों ऐसे करते हैं? ਲੜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਪੱਲੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। नहीं, तुम ये कह रहे हो, तुम्हारी टोन बता रही है, तुम्हारी टोन बड़ी खराब है कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं चाची को फायर मार देता, पुलिस को ये कर दिया, पुलिस साथ मिली, पुलिस मार रही। तुम्हारी टोन बड़ी खराब है। को बदमाशों से ताल्लुकात हैं तुम्हारे? नहीं, अल्लाह माफ़। को बहुत लंबे लंबे हाथ हैं तुम्हारे? नहीं। को चार पीछे ब्यूरोक्रेसी के हाथ हैं तुम्हारे? नहीं। तुम्हारी टोन बहुत खराब है। इससे खेलना बंद करो और जो कहानी है वो सुनाओ। यही कहानी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਤਾਂ गली से गुजरने से मना क्यों करते थे तुम? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। किया है तुमने मना? ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੱਕ ਲਿਆ। कातिल की कसम कौन कबूल करता है? तुम इस टाइम ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ मुस्लिम हो। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਜ਼ਬਾਨ मुसलमान कत्ल नहीं करता। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫਾਅ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗ। मुसलमान कत्ल नहीं करता। जब उसका दिमाग आउट हो जाता है, वो दीन से बाहर होता है, तो वो ये काम करता है। तुम्हारी जुबान किसने माननी है इस टाइम? तुम तो इस टाइम मुलजिम हो। अगर तुम्हारे इतने मसाइल थे तो तुम्हें चाहिए था तुम पुलिस से रब्ता करते। जो शख्स तुम्हें कत्ल करने के लिए आया, बकौल तुम्हारे, तुम्हें कोई फायर नहीं लगा, तुमने कत्ल किया, तो वो तुमने अपने आप को बचाया। मेरी उंगल टूटी हुई है, नजर नहीं आ लड़ाई के रही। दौरान ही टूटी है। कहाँ से? आ देखो, कोई नील नहीं, कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, उंगली टूट गई और 2 ठीक महीने ठाक? ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। कितनी दफा झगड़ा हुआ उससे? ਝਗੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਝਗੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। 3-4 दफा हुआ है। हाँ जी। तीनों चारों दफा हाथापाई हुई है, ਹਾਂਜੀ गालम गलोच हुई है। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਝਗੜਦੇ ਸੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ। तुम लोग कुछ नहीं करते थे? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹ 3-4 ਜਣੇ, मैं ये ਕੱਲਾ। माड़ा बंदा कैमरे के सामने उछल उछल के जवाब दे रहा है। ये माड़ा बंदा कैमरे के सामने दीदा दलेरी से कह रहा है कि चाची हाथ रखती तो चाची को कत्ल करता। वैसे तुम माड़े हो। कोई मसला नहीं। कौन सी क्या कहा मैं है? नहीं मारे। नहीं, मसला क्या कहा है? मैंने कही कोई आपने मसला क्या नहीं। जवाब दिया आगे से? दिया। कोई मसला नहीं। किस मैंने चीज का कहा कोई मैंने मसला उसको नहीं है? मारा ही नहीं है फिर। किस चीज का कोई मसला नहीं है? कौन सा मसला? मसले हल करने के लिए यहाँ खड़े हो हथकड़ी लगा के तुम? तुम्हें हथकड़ी लगी हुई है, तमगा नहीं मिला कोई? तुम कह रहे हो कोई मसला नहीं। किस चीज की शय है भाई? बरल मैं नहीं ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। मैंने ये सवाल नहीं किया, मैंने ये पूछा शय किस चीज की है। दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, किस लिए? नहीं खराब ही। तुम बोल रहे हो कैमरे के सामने मैं चाची को कत्ल करूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये कौन सी टोन है तुम्हारी? गलत सी मुंह से गई तो तो जान फिर मैं- निकली होती है कत्ल करने के बाद। गलत सी गई ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ? आपने कानून को हाथ में लिया? नहीं मैं नहीं लिया जी। नहीं लिया। नहीं मैं ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। तुमने कानून को हाथ में नहीं लिया? नहीं। कैसे नहीं लिया? कत्ल हुआ ਹਾਂਜੀ। तो फिर कैसे लेते हैं कानून को ਮੈਂ हाथ में? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। तो फिर थल्ले नहीं लगा, उन्होंने लग गया। ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ, ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ पुलिस ਕੀਤੀ ਹੈ। भी आपकी दुश्मन आपके खिलाफ स्टेटमेंट बनाती है, मुद्दई भी आपके दुश्मन आपके खिलाफ स्टेटमेंट बनाते हैं, चाची आपकी खराब है लोगों के साथ, इल्ज़ामात आप पुलिस पे भी लगाते हैं, मुद्दइयों पे भी लगाते हैं और लोगों पे भी लगाते हैं। पूरा माशरा ख़राब हो गया आपके साथ। कोई तो वजह होगी ना अल्लाह के बंदे। एक बंदे की किसी से कोई दुश्मनी हो गई, कोई मसला बन गया, सारे इदारे ख़राब हो गए तुम्हारे खिलाफ। इतनी बड़ी तोप हो तुम। कोई मसला बताओ ना मुझे। तुम्हारी बात का ना सर है ना पैर है, समझ कुछ नहीं आ रही है। ਬਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ, ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। क्या कहती है? ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ। क्या कहा? इतना इदा ही तेन ना मारतियां, गल कितों शुरू ਉਹਨਾਂ हुई? ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। हाँ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂ ਥੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ। ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਕੱਢਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ। चाची को? हाँ जी, उन्होंने चाची तो उल्टा- बड़ी होती है उम्र में, उसको गालियां निकाल दी थी। ਬਸ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਸੀ। ओ भाई तुम बंदे मार के कह देते हो मैंने कानून में हाथ नहीं दिया, चाची माँ की जगह पे तुम उसको गालियां दे के कह रहे हो गलत सी मैं ठीक कीता। अल्लाह के बंदे तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो गलत थी या वो सही थी वो अल्लाह ने फैसला करना है, उसके खावत ने फैसला करना है, तुमने नहीं करना। तुम ठेकेदार नहीं हो उसके, उसका खावत ठेकेदार है उसका, या उसका बाप भाई ठेकेदार है। तुमने अच्छा जी चाची को गालियां निकाली, फिर ਉਹਨੇ आगे? ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ये ਲੜਦੇ पिस्टल ਲੜਦੇ। जो तुम्हारे हाथ से बरामद हुई है ये किसकी थी? तुम्हारी थी, चाचे की थी, किसकी थी? ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ तुम्हारे वालिद के नाम पिस्टल जो है वो लाइसेंस है उसका? ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀ। अच्छा, सिखाई भी बाप ने तुम्हें थी नहीं, चलानी? नहीं। पुत्र ऐसे चलाई? ਨਹੀਂ, हाँ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੜ ਪਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ 4 ਜਣੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਗਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਾਅ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। अच्छा, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ तो ਵਾਈ। 4-5 दिन कहाँ मफरूर रहे हो? ਮੈਂ ਚਲਾ मफरूर ਗਿਆ तो ਸੀ, रहे हो कराची ना? चला गया ਸੀ। कराची क्यों गए? तुमने तो जमीन में फायर मारा है, तुम्हें तो शोर है, तुम्हारी गन से लगा ही नहीं फायर, तो फिर तुम्हें भागने की क्या ਉਹ ਮੈਨੂੰ जरूरत? ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। तो बाकी फैमिली, ਕੋਣੀ तुम्हारी बाकी फैमिली? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈ। ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵਾਲਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। गली से किसी को गुजरने पे रोकने वाला कानून मैंने आज पहली दफा सुना। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ गली ਉਹਨੂੰ कोई ਕਦੀ ਨਹੀਂ खरीद रखी थी ਰੋਕਿਆ। आपने? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, क्यों रोका था? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है उनसे बात करते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन असल हकायक से पर्दा उठाएंगे। ये जो राशिद नाम का लड़का है जो कत्ल हुआ है, तलत लोगों को शक था इस पे। ये हमारे ख़ानदान की एक औरत है, उसके साथ इसके मरासम है। जो तलत का वालिद तालिब है जो इस टाइम प्री अरेस्ट बेल पे है, वो इसको मना करता था कि आपने इस गली से नहीं गुजरना। उस दिन भी राशिद जो है वो गली से गुजरा था। तालिब नाम का जो मुल्ज़िम है उसने उसको कहा कि मैंने तुम्हें पहले मना किया कई बार, आप क्यों इधर से गुजरते हो। तो इस बात पे उनका मामूली झगड़ा हुआ है। इस टाइम हम मौजूद हैं थाना ठेकरीवाला में, जहां पर मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं मोहम्मद नवीद असलम बेग साहब, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और इस केस की तफ्तीश इन्होंने की है। मेरिट की बुनियाद पर मुल्जिम को गिरफ्तार किया। क्या कहानी है, कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं और कहां तक किए गए हैं, ये हम मोहम्मद नवीद साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नवीद साहब, जीरो से स्टार्ट करते हैं कि कहां से मामला स्टार्ट हुआ, पुलिस के पास जो कॉल आई, जो शख्स आया वो कौन था? 15 पे कॉल की है। जो इस केस में कत्ल हुआ, राशिद नाम का लड़का था। और ये राशिद जो है ये काम करता था ये सब्ज़ी मंडी में। तो इसके भाई की तरफ से 15 की कॉल आई है हमें, मुकामी पुलिस को, थाना को, कि फ़लाँ जो मुल्ज़म है तलत वगैरह, इन्होंने मेरे भाई राशिद को फायर करके कत्ल कर दिया। तो इस कॉल के बाद मुकामी पुलिस मौका पे गई है। तो मुकामी पुलिस ने वहाँ पे जाके अपनी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है वो की है। मुल्ज़म का पोस्टमार्टम करवाया, जो मकतूल है उसका, और FIR दर्ज हुई। ठीक है। और फिर FIR दर्ज होने के कुछ दिनों के बाद जो मुल्ज़म तलत है जो मेन जी, उसको फिर ये इधर मेरी पोस्टिंग हुई है, तो फिर मैंने आके तलत को अरेस्ट किया 1 वीक कबल। ठीक है। तो इसका जो FIR हुई थी वो तलत और उसका वालिद तालिब और उसकी मदर जो है इसरार बीबी, ठीक है, 3 के अगेंस्ट हुई थी। और जो इसरार बीबी है वो जुडिशल हो गई है, और जो तालिब है वो प्री अरेस्ट बेल पे है। ठीक है। और जो तलत है जो मेन कल्प्रिट है वो मेरे पास रिमांड जिस्मानी पे है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस कत्ल की वजह अनाद क्या है, बेसिक रीज़न क्या है? ये जो राशिद नाम का लड़का है जो कत्ल हुआ है, ये तलत लोगों को शक था इस पे कि ये हमारे ख़ानदान की एक औरत है, उसके साथ इसके मरासम है। ठीक है। इनको ये शक था। तो तलत जो है वो गुजरता था गली से। तो जो तलत का वालिद तालिब है जो इस टाइम प्री अरेस्ट बेल पे है, वो इसको मना करता था कि आपने इस गली से नहीं गुजरना। क्या वजह है? कि गली से तो कोई भी गुजर सकता है ना, ये तो डिमांड ही नाजायज़ है। हाँ, उनको ये था कि इस गली में वो जो औरत है हमारी रिलेटिव, ठीक है, उसका घर है, ये इस गली में उस औरत के लिए आता है। अच्छा, ये शक ऑनर इशू था, ऑनर ओके। इशू था। ठीक है। तो जिस दिन ये ऑकरेंस हुई है इस इंसिडेंट की, उस दिन भी राशिद जो है वो गली से गुजरा था। तालिब नाम का जो मुल्ज़िम है उसने उसको कहा कि मैंने तुम्हें पहले मना किया कई बार, आप क्यों इधर से गुजरते हो। तो इस बात पे उनका मामूली झगड़ा हुआ है। ठीक है। लोगों ने बीच बचाव करा दिया। अच्छा, इससे पहले ये हो चुका?
उसी दिन इस ऑकरेंस मर्डर से कोई आधा घंटा पहले ओके, ठीक है। ये मामूली सीन की तलख कलामी और झगड़ा हुआ, गाली गलौच हुआ है। लोगों ने बीच बचाव करा दिया, दोनों पार्टीज अपने अपने घरों को चले गए। ठीक है। थोड़ी देर के बाद फिर राशिद रूटीन में गुजरा था, तो ये जो लड़का तलत है ये भी आ गया। ठीक है। इसने कहा कि आपने मेरे वाले से पहले झगड़ा किया है, ठीक है। आपको मना करते हैं, आप क्यों जाते हैं। एक बार फिर झगड़ा हो गया। उस झगड़े में तालब भी था, इसकी जो मदर है वो भी थी, इसरार बीबी जो जुडिशल हो चुकी है, और ये तलत भी था। ठीक है। उस झगड़े में तलत ने 244 बोर राइफल से फायर करके राशिद को कत्ल कर दिया, और ये तीनों मुलजम मौका से फरार हो गए। तलत की जो राइफल थी, क्या ये लाइसेंस था इसका, चेक किया आपने? अभी हमने रिकवर नहीं की है। ठीक है। ये मुलजम हमारे पास फिजिकल रिमांड पे है। ठीक है, अभी चल रहा है सिलसिला। इसकी इंटेरोगेशन करके वो रिकवर करेंगे, रिकवर करने के बाद पता चलेगा कि वो राइफल की ठीक क्या है। स्टेटस है। ये बताइए कि तलत का आपने रिकॉर्ड चेक किया है, किस किस्म की एक्टिविटीज हैं इसकी? तलत पहले रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है। तलत रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम नहीं है। इसका फादर जो है वो रिकॉर्डेड है, वो नारकोटिक्स के मुकदमात में रिकॉर्डेड रहा है। काफी सारे FIRs हैं? 2 FIRs हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की कहानी आपने देखी और जानी। मेरी गली से क्यों गुजरते हो? मैंने जब मना किया कि यहाँ से नहीं गुजरना, फिर तुम यहाँ से क्यों गुजरे? इस बात पर मर्डर हो गया एक नौजवान। गुस्से की इंतहा ये है, अदम बर्दाश्त का आलम ये है हमारे माशरे में कि कत्लो गारत से भी गुरेज नहीं करते। यही मामलात चंद पलों के लिए अगर सोच लिए जाएं और सब्र कर लिया जाए तो शायद आज हथकड़ी लगे इस थाने में रातें ना गुजारनी पड़ती। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।